हेलो बच्चों। तो आज के वीडियो में देखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच। क्या देखते हैं बच्चों? कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच। सो एक प्यारा सा हेडिंग दे दीजिए वहां पे, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच। ओके, सो कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच। तो बच्चों क्या होता है पीएच, क्या होता है पीओएच, क्या होता है? आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है पीएच क्या होता है। एक पीएच स्केल रहता है, अगर पीएच इक्वल्स टू 7 हो गया तो सॉल्यूशन न्यूट्रल बनता है। पीएच इज लेस देन 7 हो गया तो सॉल्यूशन एसिडिक बनता है। पीएच इज ग्रेटर देन 7 हो गया तो सॉल्यूशन बेसिक बनता है। ये सब चीजें आप लोगों ने क्लास 10th में तक पढ़ लिया है कि एग्जैक्टली पीएच क्या होता है, पीएच स्केल कैसे रहता है। सो लिसन हियर, द पीएच स्केल वाज डिस्कवर्ड बाय वन साइंटिस्ट, his name was Sorensen. Who discovered the pH scale? Sorensen. Okay, so exactly pH क्या होता है बच्चों? तो देखो, pH is defined as negative logarithm। बस जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट के बेसिस पे ही हम लोगों को पीएच और पीओएच का डेफिनेशन लिखना है। सो पीएच इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन। ओके, सो क्या डेफिनेशन होगा? पीएच इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 of the molar concentration of hydronium ion, the molar concentration of hydronium ion, or pH is defined as negative logarithm to the base 10 of the molar concentration of hydrogen ion. Okay, so how can I define? pH is defined as negative logarithm to the base 10 of the molar concentration of हाइड्रोजन आयन। इस प्रकार से भी हम लोग pH को डिफाइन कर सकते हैं। सो हाउ कैन आई डिफाइन pH? pH is defined as negative logarithm to the base 10 of the molar concentration of hydronium ion, or pH is defined as negative logarithm to the base 10 of the molar concentration of hydrogen ion, and the pH is represented by mathematically this equation. Okay, mathematically pH is represented by pH equals to minus log base 10 of the molar concentration of H3O positive, or pH equals to minus log base 10 concentration of H plus. Okay, or okay, the pOH in the same way, pOH is defined as minus log base 10 of the molar concentration of hydroxide ion. Okay, pOH को कैसे डिफाइन करेंगे? इन द सेम वे pOH is defined as negative logarithm to the base 10. How can I define? pOH is defined as negative logarithm to the base 10 of the molar concentration of hydroxide ion. Okay, how can I define? pOH is defined as negative logarithm to the base 10 of the molar concentration of hydroxide ion. Okay, so this is the definition of pH and pOH. So pH is equals to minus log base 10 concentration of H3O positive, or pH equals to minus log base 10 concentration of H plus, and pOH क्या होगा बच्चों? pOH equals to minus log base 10 concentration of OH negative. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि pH क्या होता है, pOH क्या होता है। सिंपल डेफिनेशन है बच्चों pH एंड pOH का। pH is defined as negative logarithm to the base 10 of the molar concentration of hydronium ion, or the molar concentration of H3O positive ion, or pH is defined as negative logarithm to the base 10 of the molar concentration of hydrogen ion, and pOH is defined as negative logarithm to the base 10 of the molar concentration of hydroxide ion, या फिर pOH is defined as negative logarithm to the base 10 of the molar concentration of OH negative ion in the solution. Okay, so that is the pH and pOH. Now we'll take one question here, relationship between pH and pOH. Derive the relationship between pH and pOH. We'll take one question here, derive the relation between pH and pOH
derive the relation between pH and pOH. Okay, or question, there is one more question, or question, or prove that pH plus pOH equals to 14. pH plus pOH equals to क्या होगा बच्चों 14. So हम लोगों को इसको प्रूव करना है pH plus pOH equals to 14. So देखो बच्चों कैसे प्रूव करेंगे. You know that what is the ionic product of water? The ionic product of water क्या होगा बच्चों बताओ. KW. KW equals to क्या होता है. Okay. So the ionic product of water. Ionic product of water is given by so क्या होता है ionic product of water Kw equals to होता है concentration of H3O positive into concentration of OH negative. I hope आप लोगों को समझ में आ गई है. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. सो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw क्या हो जाएगा concentration of H3O positive into concentration of OH negative at 298 Kelvin. At 298 Kelvin. So what is the value of Kw? At 298 Kelvin, what is the value of Kw? 1 into 10 power minus 14. Equation number 1 दे देंगे यहाँ पे 1 into 10 power minus 14. So equation number 1 implies क्या हो जाएगा concentration of H3O positive into concentration of OH negative equals to क्या हो जाएगा 1 into 10 power minus 14. ओके देखो Kw को मैंने इधर लिख लिया कोई दिक्कत नहीं है. ओके इक्वेशन नंबर 2. सो एट 298 केल्विन व्हाट द वैल्यू ऑफ Kw? Kw का वैल्यू होता है 298 केल्विन पे 1 into 10 power minus 14. ओके सो एट 298 केल्विन Kw इक्वल्स टू 1 into 10 power minus 14. देखो हम लोगों ने पहले ही बताया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है Kw इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव एट 298 केल्विन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kw? 298 केल्विन पे Kw का वैल्यू क्या होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है 1 into 10 power minus 14. So concentration of H3O positive into concentration of OH negative equals to Kw का वैल्यू 1 into 10 power minus 14. Taking logarithm on both sides, base 10. Taking log base 10 on both side. Okay, so क्या हो जाएगा log base 10 concentration of H3O positive into concentration of OH negative equals to log base 10 1 into 10 power minus 14. आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया. दोनों साइड में क्या लिया हम लोगों ने log लिया. अब log पता है log ये प्रोडक्ट है ना तो log a into b क्या होता है log a plus log b. log a into b क्या होता है log a plus log b. ओके सो जस्ट टेक दैट log a plus log b. log base 10 concentration of H3O positive plus log base 10 concentration of OH negative. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा log a into b क्या होता है log a plus log b. अब ये क्या हो जाएगा log base 10 1 plus ठीक है log a into b क्या होता है log a plus b plus log base 10 power minus 14. Okay, log base 10 power minus 14. Simple mathematics है. So log base 10 concentration of H3O positive plus log base 10 concentration of OH negative. And with that log base 10 1 क्या हो जाएगा 0 plus इस minus log a to the power b क्या होता है b log a. So minus 14 सामने आ जाएगा minus 14 log base 10. So log base 10 क्या होता है 1. So log base 10 concentration of H3O positive plus log base 10 concentration of OH negative equals to क्या हो जाएगा बच्चों 0. ये क्या हो जाएगा -14 क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा 0 प्लस मतलब -14 into 1 मतलब क्या हो जाएगा -14. So I write directly here -14. Okay.
क्योंकि जीरो, ठीक है, जीरो प्लस समथिंग क्या आ जाएगा, समथिंग, तो -14 log बेस 10, 10 क्या आता है 1, -14 इंटू 1 क्या आ जाएगा -14। सो अब क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, इक्वेशन नंबर 3, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन। ओके, सो यहाँ पे लिखता नहीं मैं, या फिर एक काम कर सकते हैं, इस माइनस साइन को इधर लेके आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन लिखो, ओके, या फिर माइनस को इधर लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव प्लस माइनस लॉग, इस माइनस को अगर इधर लेके, चलो ठीक है, मैं पूरा करके देता हूँ आपको, पूरा बना के देता हूँ, इस माइनस को इधर लेके आए, माइनस स्टेप बढ़ गया और क्या होगा, कुछ नहीं होगा, log base 10 concentration of H3O positive plus log base 10 concentration of OH negative equals to क्या हो जाएगा 14। इस माइनस को इधर लेके आया, तो अब इसको एक्सपांड कर दो, माइनस साइन दे दो सबको, माइनस log base 10 concentration of H3O positive प्लस लेते हैं और माइनस साइन देना है ना सबको, माइनस log base 10 concentration of OH नेगेटिव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14। आई नो दैट माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव क्या होता है pH। इक्वेशन नंबर 4, पुट माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इक्वल्स टू व्हाट pH। चेक करो pH का डेफिनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, माइनस लॉग बेस 10 concentration of OH नेगेटिव क्या होता है POH। ओके, सो इसका वैल्यू pH, इसका वैल्यू pH, सो pH, सो इक्वेशन नंबर 4 एम्प्लाइज वो वैल्यू सब इक्वेशन में, इन इक्वेशन 4 अगर 4 में पुट कर दिया तो क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 4 एम्प्लाइज इसका वैल्यू क्या है pH प्लस POH, इसका वैल्यू POH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14। सो हेंस प्रूव्ड। सो pH प्लस POH क्या होता है बच्चों 14, pH प्लस POH इक्वल्स टू निकल जाएगा 14। सो आई होप आप सभी को ये डेरिवेशन समझ में आ गया हो गया, सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पे, थोड़ा लॉग का यूज करके बनाना है आप लोगों को, ठीक है। ओके, सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर pH प्लस POH इक्वल्स टू 14। एक बार मैं समझा के देता हूँ आपको। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, लास्ट वीडियो में देखा आप लोगों ने, Kw क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। सो एट 298 केल्विन Kw क्या हो जाएगा, देखा हम लोगों ने 1 into 10 power -14। सो कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इक्वल्स टू 1 into 10 power -14, टेकिंग log base 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या लेंगे हम लोग log base 10 लेंगे। सो log base 10 H3O पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इक्वल्स टू log base 10 1 into 10 power -14। पता है आपको log A into B क्या होता है, log A plus B। सो log A plus log B इक्वल्स टू log A plus log B। तो log A plus log B, log base 10 1 क्या होता है 0 प्लस -14 को सामने आ जाएगा क्योंकि log A to the power B क्या होता है B log A। सो -14 log base 10 10, log base 10 10 क्या होता है 1। सो यू गेट दिस वन। सो माइनस को इधर लेके आओ, बाकी तो सब आपको पता है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड POH। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं pH वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट इट डाउन। ओके, now let's see the word pH value of acidic solution, basic solution and neutral solution. Okay, so जो so for pH value for acidic solution, basic solution and neutral solution. So पहले देखते हैं हम लोग pH value for neutral solution। neutral solution बोलो या फिर pure water बोलो, neutral solution बोलो या फिर pure water बोलो। ओके, for
for pure water or any aqueous neutral solution, any aqueous neutral solution क्या होता है बच्चों? मैंने पहले बताया इसके पहले की वीडियो में, फॉर प्योर वाटर और फॉर एनी एक्वस न्यूट्रल सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इक्वल्स टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। फॉर एनी एक्वस न्यूट्रल सॉल्यूशन और फॉर प्योर वाटर और फॉर एनी एक्वस न्यूट्रल सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। अब बच्चों क्या होता है यहाँ पे देखो कि at 298 Kelvin, what is this concentration? concentration क्या होगा? concentration of H3O positive, मैंने पहले बताया at 298 Kelvin for pure water at 298 Kelvin concentration क्या होगा? 1 into 10 power minus 7 क्या होगा बच्चों? 1 into 10 power minus 7 concentration of H3O positive बोलो या फिर concentration of OH negative बोलो, क्या होता है? 1 into 10 power minus 7। पहले की वीडियो में मैंने बताया आपको फॉर प्योर वाटर और फॉर एनी एक्वस न्यूट्रल सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इक्वल्स टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। सो एट 298 केल्विन कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव कितना होता है? 1 into 10 power minus 7। ओके, सो यू नो दैट pH इक्वल्स टू क्या आता है? pH इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H3O positive। okay, so pH equals to minus log base 10 concentration of H3O positive क्या है? 1 into 10 power minus 7। अब देखो यहाँ पे अगर ऐसा दिखा है minus log base 1 into 10 power minus 7, इसका वैल्यू आता है minus 1, इसका वैल्यू आता है 7। pH equals to क्या निकल जाएगा? 7। अब कैसे? देखो छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे देता। log base 10 1 into 10 power minus 7 क्या होगा? log a into b वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट माइनस साइन है वहां पे, माइनस log base 10 1 प्लस log base 10 10 पावर माइनस 7, ठीक है? माइनस log base 10 1 क्या होता है? 0 प्लस माइनस 7 आगे आ जाएगा, log base 10 10 1 हो जाता है। सो क्या होता है? 0 माइनस 7 माइनस 7, माइनस तो पहली बार है, 0 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 7। ओके, सिंपल मैथमेटिक्स है वहां पे। तो pH का वैल्यू कितना निकल जाएगा बच्चों? 7। सो फॉर प्योर वाटर और एनी एक्वस न्यूट्रल सॉल्यूशन pH का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 7। अभी देखते हैं हम लोग फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। ओके, दिस इज फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन। अभी एक देखते हैं हम लोग फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। एक ओके, सो फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, इसके लिए एसिडिक सॉल्यूशन, फॉर एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? एसिडिक सॉल्यूशन के लिए अब डेफिनेटली अगर सॉल्यूशन अगर एसिडिक रहा तो किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा? H प्लस का, हाइड्रोजन आयन का, या फिर H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, क्योंकि एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा ना। अगर सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा? एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, ठीक है? फॉर एसिडिक सॉल्यूशन देयर इज अ एक्सेस क्वांटिटी ऑफ H प्लस आयन या फिर H3O पॉजिटिव आयन। फॉर एसिडिक सॉल्यूशन concentration of H3O positive will be greater than concentration of OH negative, क्योंकि ये एसिड है ना, अगर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा तभी सॉल्यूशन एसिडिक बनेगा। अगर सॉल्यूशन में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा तभी सॉल्यूशन क्या बनेगा? एसिडिक बनेगा। सो फॉर एसिडिक सॉल्यूशन किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा? एसिड का। तो H3O पॉजिटिव एसिड हो गया, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव विल बी मोर देन 1 into 10 power minus 7। ओके, सो इससे क्या आ जाएगा? pH विल बी लेस देन 7। बस इनवर्स होता है माइनस के कारण H3O पॉजिटिव, concentration of H3O positive will be more than 1 into 10 power minus 7, that's why pH will be less than 7 for basic solution। For basic solution
फॉर बेसिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, OH नेगेटिव का, किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, OH नेगेटिव का। दैट मींस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव विल बी लेस देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। फॉर बेसिक सॉल्यूशन देयर इज अ एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव आयन। बेसिक सॉल्यूशन में क्या रहेगा, किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, देयर इज अ एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव आयन। दैट मींस ज्यादा क्वांटिटी में कौन रहेगा बेसिक सॉल्यूशन में, OH नेगेटिव। एसिडिक सॉल्यूशन में ज्यादा क्वांटिटी में कौन रहेगा, H3O पॉजिटिव, बेसिक में OH नेगेटिव। दैट्स व्हाई फॉर बेसिक सॉल्यूशन concentration of H3O positive will be less than concentration of OH negative. That means concentration of H3O positive will be less than 1 into 10 power minus 7. उसी से क्या लिखेंगे हम लोग, pH will be greater than 7. क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे ना, pH will be greater than 7. आप लोगों को पता है न्यूट्रल के लिए क्या रहता है, pH 7. For acidic solution pH will be less than 7. पता है आपको, और फॉर बेसिक सॉल्यूशन pH विल बी ग्रेटर देन 7। बच्चों जो pH स्केल है वो pH स्केल का यूज क्या है, क्यों pH स्केल इन्वेंट किया है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, ओके, इंस्टेड ऑफ राइटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इन मोल पर डेसिमीटर क्यूब, इंस्टेड ऑफ राइटिंग मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव किस में लिखेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन रहता है, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन किस में रिप्रेजेंट करेंगे, मोल पर डेसिमीटर क्यूब। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इन मोल पर डेसिमीटर क्यूब, इट इज कन्वीनियंट टू राइट इट ऑन द लॉगरिथमिक स्केल। मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव का मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिखा मोल पर डेसिमीटर क्यूब में, उससे बेटर एक आइडिया है कि उसी का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग किस पे लिखते हैं, लॉगरिथमिक स्केल पे लिखते हैं, और उसी स्केल को बोलते हैं हम लोग pH स्केल। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग concentration of H3O positive ion in mole per decimeter cube, it is convenient to write it on the logarithmic scale. It is convenient to write it on the what, logarithmic scale, and that scale is called as pH scale. उसी स्केल को बोलते हैं हम लोग pH scale. अगर pH scale की बात किया जाए, अगर pH equals to 7 है तो solution क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। अगर pH is less than 7 है तो solution acidic बनेगा। pH अगर ग्रेटर देन 7 है तो सॉल्यूशन बेसिक बनेगा। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। आज की क्लास में क्या देखा हम लोगों ने, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर देखा। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी रहती है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, KW का वैल्यू कितना रहता है 298 केल्विन पे, वो देखा हम लोगों ने। pH को देखा, pOH को देखा, एंड द रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH, एंड दिस व्हाट इज द pH वैल्यू फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, pH वैल्यू फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, pH वैल्यू फॉर बेसिक सॉल्यूशन। ओके, आई होप आपको आज का पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके, कमेंट कर सकते हो कि कुछ डाउट अगर रहेगा तो, ठीक है। चलो, दिस ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन। कल के क्लास में pH और pOH के न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग बच्चों, ठीक है। चलो, बाय बाय फॉर टुडे सेशन।